By the way, you look at this strength, it is too low, but anyway. All right, so let's talk about someone else. You know, last time we ended up with Machiavelli, and he showed himself a very incomplete philosopher somehow, or an incomplete author, in the sense that we raised certain questions over his ideas. And to fulfill that gap, we have to go to Thomas Hobbes. And Hobbes is the person, or that figure, philosophical figure, who will somehow um, fulfill that gap created by Machiavelli, right? So आज के lecture में I will talk about Hobbes, a little bit about his biography and background, and then I will move and talk about the sciences or the scientific revolution जो कि हॉब्स के टाइम पे था, जिसका हॉब्स के ऊपर काफी असर था. um, और at the same time I will also talk about the materialism, या जो materialistic metaphysics हैं जो हॉब्स से निकली हैं, हॉब्स के आइडियाज के ऊपर इन्फ्लुएंस भी करती हैं. So I will talk about that as well. And I will also talk about Hobbes as a nominalist, and I will show you what is nominalism. Then there is discussion about two physical motions, will and knowledge, and Hobbes' utilitarian psychology, and ultimately his theory of human nature. So today's lecture is a bit long, but let's see. अगर आप bore हो जाते हैं and you want me to stop somewhere at some place, so feel free, right? But before everything, let me just start with the background of Hobbes. Um, Thomas Hobbes is a British writer, British philosopher and political thinker. So the things that are happening in Britain also influences his ideas, right? Just like it was the case with Machiavelli. For example, Italy के अंदर जो कुछ हो रहा था, it ultimately influenced Machiavelli and his thoughts. And same is the case here with Thomas Hobbes. जैसे ही आप ये नेल्सन का टेक्स्ट पढ़ते हैं तो स्टार्ट में ही वो कहते हैं कि fear and I were born twins, you know, because जिस टाइम पे इनकी पैदाइश होती है तो उसी टाइम पे इंग्लैंड का प्रॉब्लम है, वॉर चल रहा है with the Spanish forces. So in that sense, I would say the background, the political background or the geopolitical scenario is influencing these writers. And I think there is not a single philosopher who can be described in isolation from his environment, right? Like environmental determinism is somehow nested inside these philosophies. कि जो भी philosopher आता है, जो भी कोई ideas पेश करता है, तो उनके बैकग्राउंड का उन पे बहुत बड़ा असर होता है, और पर्टिकुलरली जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो मैटर करता है. ठीक है. सो और मोस्टली हाब्स जो जितनी भी फिलोसॉफिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल थ्योरी की हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल, उसमें हाब्स को डिफाइन किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है विद दिस notion and this idea that he was a pro-monarchy, he was a pro-government, he was a pro-royalism, you know. So he is that person who is supporting the government, and he is the, you know, the champion and advocate of the government, right? And he will tell us in detail why we need a government and why we need an authoritarian power, you know. So he's also described quite fairly with his book Leviathan. You know, उसने एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बुक लिखा है लेवायतन, जिसमें उनकी ये सारी फिलोसफी है, और जो कि somehow एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है. ठीक है.
लेवायतन, वैसे ये टर्म अगर आप देखें तो इसकी ओरिजिन बाइबल से है, ठीक है। ये टर्म बाइबल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और बाइबल में भी उसके अपने एक मीनिंग है, वो एक मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेवायतन, राइट। सो इन्होंने भी अपने बुक का नाम ऐसे रखा है कि लाइक ही इज सपोर्टिंग दैट overarching power, Leviathan meaning that powerful entity, and by powerful entity he meant the state, the government, the authority, or in other words, in his time, the king, right? um, okay, let me admit these guys. Okay, so लिवाइथन उसका बहुत मशहूर बुक है। एक और बुक है डे चीवे, जिसका नाम है लिखा जाता है डी साइवे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी डे चीवे, ऑन द सिटीजन, जिसके मीनिंग है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट। और उसके साथ साथ एक और बुक है जिसका नाम है बेहीमथ। बेहीमथ इज ऑल्सो ए मॉन्स्टर, इन द बाइबल। So like these names are quite derived from theological texts. But he is not a very theological person. He was charged with this accusation of atheism and things like that. So you can see that he is not that person, but he is naming his books after such names, anyway, so जिस टाइम पे वो इंग्लैंड में उसकी बर्थ होती है, और फिर उसका वर्क और उसकी लाइफ और उसकी सारी एक्टिविटीज, you can see at that time an English civil war was happening, और उसके रूट्स भी यूरोप के उस रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन, इन चीजों के साथ थे। आप लोगों ने सुना होगा रिफॉर्मेशन का पीरियड जो यूरोप में था, कि जिसमें चर्च डिवाइड हुआ इनटू प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, राइट। और मार्टिन लूथर उसके फाउंडर हैं प्रोटेस्टेंटिज्म और प्रोटेस्टेंट revolution in Christianity. Martin Luther is not that Martin Luther, there is another Martin Luther King Jr. उसकी बात नहीं हो रही, ये एक 16th सेंचुरी का एक फिगर है। सो मार्टिन लूथर वो बंदा है जिसने प्रोटेस्टेंटिज्म को मतलब उसके फाउंडेशन रखी somehow, and he described himself outside the church, and he said that we don't have any connection with the relics of the church, जो पुरानी चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज हैं, जो पोप है, उनसे अलहदा होने की उन्होंने अपनी सिफारिशात पेश की, और रिजल्टेंटली इट केम आउट एज अ मूवमेंट नोन एज द रिफॉर्मेशन। उसके रिस्पॉन्स में काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुई, जिसको लीड कर रहा था इरास्मस, उस बंदे का नाम था। तो इरास्मस वाज counter reformative, he was making certain other claims, but anyway, जो हमारे लिए मैटर करता है इस पूरे मूवमेंट्स के अंदर, वो ये कि इंग्लैंड सडनली एक सिविल वॉर में चली गई। दो इट वाज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल और समहाउ कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम, सारे यूरोप में प्रॉब्लम था, बट इंग्लैंड में ये प्रॉब्लम इस हद तक चला गया कि वहां पे उन्होंने पॉलिटिक्स को असरअंदाज किया। लाइक थियोलॉजी ने पॉलिटिक्स को के ऊपर असर किया, और पॉलिटिक्स थियोलॉजी के ऊपर असर कर रहा है। सो that that connection between the state and the church, or the religious authority and the profane or secular authority, वो प्रॉब्लम डिवेलप हुआ इंग्लैंड में, ठीक है। बट कीप ऑन माइंड दैट जो इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ वो एक रिलीजियस वॉर नहीं था, ये बात याद रखें। इट वाज नॉट अ प्योरली रिलीजियस वॉर, इट वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स मोस्टली, इसके पीछे इकोनॉमिक फोर्सेस ज्यादा थे। बट you can fairly say कि religious involvement इस सेंस में थी कि जो ग्रुप्स तकसीम हुए हैं, फॉर एग्जांपल रॉयलिस्ट्स और पार्लियामेंटेरियंस, जिसको प्योरिटन्स कहा जाता है, तो उनकी इंक्लिनेशन भी रिलीजियस है। और वो फॉर एग्जांपल किंग को, फॉर एग्जांपल जो रॉयलिस्ट्स हैं वो उसको डिवाइन राइट्स के बेस पे देखते हैं। वो उनका ख्याल यह है कि जो किंग है उनके पास खुदा की तरफ से इख्तियारात हैं, जो यहाँ पे बैठा है तो ये खुदा की तरफ से आया है, ठीक है। और जो प्योरिटन्स हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो उस
आइडिया को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज दे थिंक के स्क्रिप्चर जो टेक्स्ट है, जो बाइबल है फॉर एग्जांपल, उनकी इंटरप्रिटेशन वो ऐसी नहीं है जिस तरह रॉयलिस्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये डिवाइन फिगर नहीं है, ठीक है. So they were taking authority in their own hands somehow. They are, you can see, a very democratic kind of people, you know. But please be careful with the term democracy, because that's another debatable area. बट आफ्टर ऑल एनीवे, इनके दरमियान ब्लडशेड हुआ और काफी प्रॉब्लम्स हुए, एंड यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस स्टोरी आई होप, जो इस इंग्लिश सिविल वॉर की है. 1660s में फिर आप देखते हैं सर, अगरचे मॉनर्की को ओवरथ्रो करते हैं, लेकिन फिर दोबारा ओलिवर क्रॉमवेल जो थे, उनके पास इतने स्किल्स नहीं थे टू रन द गवर्नमेंट, तो उन्होंने फिर मोनार्की को कहा कि आ जाएं और सिस्टम को संभाले, मैं नहीं संभाल सकता. तो बट एनीवे, आफ्टर ऑल 1688 को जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जिक्र होता है इंग्लिश हिस्ट्री में और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, तो it happened, and resultantly parliament gave up on asserted all their authority, and the king gave up on his authority somehow. And yep, if somebody is speaking, Faizan, your mic is on. Okay, good. So रिजल्टेंटली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट खैर उसी टाइम पे थॉमस हॉब्स नहीं था, लेकिन जो जो स्ट्रगल का और वॉर का टाइम था, तो उसी टाइम पे हॉब्स वाज वेरी एक्टिव एंड ही वाज एक्टिवली सपोर्टिंग मॉनर्की. सो यू कैन सी दैट कनेक्शन देयर के मैंने कहा कि उसका एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और मॉनर्की. इसमें एक अलग डिबेट है कि बहुत से मोनार्क्स जो थे, फॉर एग्जांपल ये चार्ल्स टू का जो जिक्र होता है, उसकी ट्यूटरशिप भी थॉमस हॉब्स ने की, उनको पढ़ाया सिखाया और उसको सारे यूरोप घुमाया एट द सेम टाइम, क्योंकि थॉमस हॉब्स बहुत ज्यादा एक ऐसा बंदा है जो कि स्टेटिक किस्म का बंदा नहीं है. वो आउटसाइड द इंग्लैंड जाता है और डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट लोगों से मिलता है. गैलीलियो से वो मिला था और इस तरह के न्यूटन से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और वो उनके साइंस से भी इंस्पायर था, तो रिजल्टेंटली यू कैन सी द कनेक्शन देयर, ठीक है. और उन्होंने चार्ल्स टू को भी जो कि उस वक्त प्रिंस था, यंग प्रिंस, तो उनको उनकी ट्यूटरशिप भी की और उनके साथ कनेक्ट भी थे. बट एनीवे, जो उसकी अपनी बेसिक आर्गुमेंट थी फॉर द सपोर्ट ऑफ मॉनर्की, वो थियोलॉजिकल नहीं थी. मैंने जैसे पहले कहा कि ही इज नॉट अ थियोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन, राइट? So anyway, that's the story of the background in politics or geography. और आप इसके डिटेल में जा सकते हैं, that's up to you. मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. I want to jump into the basics के हॉब्स हमें क्या दे रहा है, ठीक है. So on the one side ये political game चल रहा है, but on the other side there is an intellectual game एट प्ले, और वो गेम है वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, कि यूरोप में एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है विद द अराइवल ऑफ गैलीलियो, ठीक है. और आई होप कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कोपरनिकस का, कि बहुत से अर्ली टाइम में कोपरनिकस ने आइडिया दिया था कि शायद ये जो अर्थ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इस पे अर्लियर एक डिबेट शुरू हुई थी जो कि बाइबल के अगेंस्ट एक हाइपोथेसिस था. लेकिन गैलीलियो ने थ्रू हिज टेलीस्कोप एंड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स he came up with this conclusion that yes, Copernicus was right, ke the earth revolves around the sun and not the other way around. So ये एक ऐसा चार्ज था जिसको तो खैर चर्च ने मतलब एक अच्छे अंदाज के साथ एक्सेप्ट नहीं किया. बट आफ्टर ऑल ये आइडिया इमर्ज हुआ कि साइंटिफिक वे के साथ और इंस्ट्रूमेंटल वे के साथ आप चीजों को देखना सीखें, ठीक है. सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का यहाँ पे मतलब यह है वो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रूमेंटल काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, के आप मतलब जितनी भी चीजें हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं,
अपने सेंसेस से उन चीजों के बिल्कुल डीप में आप जाएं, ठीक है, और वहां पे हमें एक नया सेंस दे एम्पेरिसिज्म का, नई सेंसेस का हमें आइडिया दे, मतलब गोइंग इनटू द मटेरियलिस्टिक डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। सो ये इसके साथ आगे इसकी डिटेल है, लेकिन मैं जस्ट इस पे जिक्र कर रहा था कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन का असर है हॉब्स के ऊपर, और इसलिए यहाँ पे ये बात नेल्सन कहते हैं कि हॉब्स के माइंड में, जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, तो वो उनके माइंड में जो मिडीवल लोगों थे, जो मिडीवल लोगों की आइडियाज थी, उनके स्कॉलास्टिसिज्म या थॉमस एक्वाइनस के आइडियाज या पुराने जितने भी अगस्टन से मुतासिरा लोग थे, उनके लिए उसकी एक उनके माइंड में एक क्रिटिक डेवलप हुई, एक क्वेश्चनिंग प्रोसेस डेवलप हुआ, ठीक है, जो कि एक रिजल्टेंटली दैट मेड हिम अ वेरी साइंटिफिक पर्सन, राइट। और वो जो आइडियाज फॉर एग्जांपल थियोलॉजी से रिलेटेड हैं, टीलियोलॉजी से रिलेटेड है कि लाइफ का एक पर्पस है, ये है, वो है, खुदा ने ये दिया है हमें, फॉर एग्जांपल, ये चीजें हॉब्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी और हॉब्स ने इन सब पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था। ये क्यों? बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट perspective of science, you know, or resultantly he applied that perspective and that approach to politics, right? So that's why Nelson said that if Machiavelli is the Copernicus of politics, Hobbes is it's Galileo, right? He is completing that idea developed by Machiavelli about politics. But अगर आप लोगों ने देखा कि मतलब Machiavelli is relying on human nature and all these stuff related to power politics, हाब्स की हाब्स को हम इस पे क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक साइंटिफिक थ्योरी डेवलप की और उसने उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करने की कोशिश की, राइट। सो anyway, that is happening on the other side, on the entire continent. um, अच्छा, यहाँ पे लास्ट में ये डिस्कशन है कि रॉयलिस्ट्स और प्योरिटन्स की कनेक्शन क्या थी, बट मैंने जैसे कहा कि हाब्स की ओरिएंटेशन रिलीजियस नहीं है, और उनका ख्याल ये है हाब्स का कि जो अथॉरिटी हमें मिली है उसको वो जस्टिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड इफेक्टिव यूज ऑफ अथॉरिटी, राइट। सो ही इज नॉट कंसर्न विद रिलीजियस authority. He is concerned with the real practical power politics, right? So to both royalists and puritans he was an atheist, you know, a powerful charge of the time, though at the end हॉब्स को चूंकि ये अक्सर रॉयल कोर्ट्स में बैठा करते थे और वो सुनते थे और वो अपने ओपिनियन देते थे, राइटिंग भी उन्होंने समहाउ ऐसी की थी कि जो एंड में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी फॉर रिलीजियस ग्रुप्स। तो फिर किंग ने भी उस टाइम पे मशवरा दिया था हॉब्स को कि आप जरा थोड़ा सा गुजारा कर लें, इतने स्ट्रांग वे के साथ ओपिनियनेटेड ना हो अगेंस्ट रिलीजन, अदरवाइज ये लोग आपको जलाएंगे, आपके साथ वो हशर करेंगे। तो फाइनली फिर बाज राइटिंग्स उसकी ऐसी थी हॉब्स की जो कि उन्होंने बर्न की और उसको खत्म की, और फिर वो साइलेंट भी रहे एट द एंड, राइट। So that was his, you know, I was just referring to his biography and to his background. Just one second. Yes, yes. I'm sorry, I'm busy now. 1.5 hours somehow. Yeah. Okay, just. Anyway, I'm sorry. So anyway, that was the background, you know, I was talking about. फिर आप इसको खुद चेक कर लें, ये डिटेल्स अवेलेबल हैं, बट और मैं इसके साथ इतना ज्यादा वो नहीं हूँ। लेट्स कम डाउन टू द आइडियाज कि ये नया साइंस क्या है जिसने हॉब्स को इतना ज्यादा मतलब प्रोवोक किया है कि वो मतलब हर एक चीज को एक बहुत अजीब अंदाज से देखते हैं। ये क्या चीजें हैं जिससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं?
So it was based on the materialistic metaphysics, based on the epistemology of the new science. However, that was most revolutionary. That epistemology was empiricism, but an empiricism of a quite different sort than that of Aristotle or even of Machiavelli. So कल भी हमने एम्पेरिसिज्म के हवाले से थोड़ा कुछ डिस्कशन किया था, एंड यू ऑलरेडी नो कि व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पेरिसिज्म वी आर रेफरिंग टू द सेंस एक्सपीरियंसेस, राइट? लेकिन यहाँ पे एम्पेरिसिज्म का जिक्र हो रहा है, बट विद अ न्यू ट्विस्टिंग टर्न, यू नो, यहाँ पे एम्पेरिसिज्म एक डीप डाउन डिफरेंट चीज है, ठीक है, और एक नया काइंड है ऑफ एम्पेरिसिज्म, यू नो। ये एम्पेरिसिज्म एक मटेरियलिज्म के बेस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं कि फॉर द न्यू एम्पेरिसिज्म, particularly that of Galileo, didn't take the world of sensation, what people see, hear or feel at face value. Rather, it looked beneath this reality to something more basic. This something, according to Galileo and consequently of Hobbes, is body and motion. You know, आप लोगों ने सुना होगा मटेरियल साइंसेस और जितने भी अर्लियर नोशंस हैं क्लासिकल फिजिक्स की, या सॉरी मॉडर्न फिजिक्स की, न्यूटोनियन फिजिक्स की अगर आप देख लें, तो वो रिलाई करती हैं मास और एनर्जी पे, यू नो, जिसको उसी टाइम पे ये बॉडी और मोशन कहते थे, ठीक है। सो these people are looking at matter from this perspective, from the perspective of body and motion, from the perspective of mass and energy, right? ये ऐसी perception है about empiricism which makes it deeply scientific, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक किस्म का empiricism है, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसमें ऑब्जर्वेशन शामिल नहीं होता, इसमें ऑब्जर्वेशन शामिल होता है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा डीप जाता है इनटू द मैटर, राइट? सो ये इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि बॉडी दैट इज मास एंड मोशन दैट इज एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स. For these two thinkers, body refers to what we would today call mass, the basic structure of matter out of which all things are comprised. Motion refers to the fact that mass is energized, that bundles of matter move ceaselessly through space unless compelled to become stationary by the resistance of other bundles of matter. कि मतलब कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है मटेरियली, उसके अंदर कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है, जो उसकी उस एग्जिस्टेंस को वजूद में लाते हैं, somehow उसको एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो मतलब इनके अंदर एक सीजलेस स्ट्रगल है, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है इस मैटर के अंदर. सो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द आइडिया ऑफ द मास, राइट, कि इसके अंदर एनर्जी है, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी है, राइट. So mass, energy, space, time are those fundamental categories to which modern science reduces all our sensory experiences. Categories that are simple, more sophisticated versions of Hobbes' body and motion. So Hobbes इस आइडिया से बहुत ज्यादा मुतासिर है. उनका ख्याल ये है कि हम जो भी चीजें देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर मास और एनर्जी होती है, ठीक है. सो अदरवाइज इट वुडंट एग्जिस्ट एट ऑल, राइट. सो ये उसका बेसिक assumption है about everything, ठीक है. So science relies upon these categories because they are common to all things that we perceive. Such a common denominator is the first requirement in the development of any scientific theory. For without it, we would have no way to make any sense out of what we observe, ठीक है. So मतलब they are looking for a common denominator, a common sign language, कि जो उस चीज को वो नाम देता है, जो चीज जिसको वो एंटाइटल करता है, इसको कॉमन डिनोमिनेटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप प्लेटो से पूछें कि जो भी मटेरियल चीजें आपके सामने एग्जिस्ट करती हैं, ये क्या है, तो वो ये कहेंगे कि इसके एंड में इसका कॉमन डिनोमिनेटर वो नॉन मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल है, जो उसको वो फॉर्म्स कहता है,
ठीक है। लेकिन अगर आप थॉमस हॉब्स से पूछते हैं कि ये मटेरियल चीज है जो एग्जिस्ट करती है, इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, इसके एंड और बॉटम में क्या चीज है जिसने इसको शक्ल दी है, तो वो कहेंगे कि मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है, मैटर है, ठीक है, और इसके अंदर एनर्जी है, इसी वजह से ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो हिज आइडियाज आर वेरी मच इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। और अगर आप प्लेटो को देखते हैं तो प्लेटोनिक साइंसेस, अगर उस सेंस में आप कहें तो वो फॉर्म्स के आइडियाज से आए हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, वन इज वेरी मच मटेरियलिस्टिक एंड द अदर वन इज नॉन मटेरियलिस्टिक, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कलर का। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। आप अगर इस एग्जांपल के ऊपर जरा सोचे कि let's suppose we wish to explain the phenomenon of color. So long as we remain at the crude empirical level of pure sensation, we will find it impossible to explain much of anything because we will have no common denominator of color. We will find it difficult even to get agreement on what is red versus what is pink or reddish orange or so on and so forth. Okay, for example, मेरे सामने एक कलर है, ठीक है, इसको मैं या रेड कहता हूं या पिंक कहता हूं या ग्रीन कहता हूं, ये मैं किस बेसिस पे कहता हूं, ठीक है। लेकिन मेरे लिए क्या चीज है जो कि इसके अंदर एक कॉमन डिनोमिनेटर का रोल प्ले करता है या एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसके बेस पे मैं ये कहूं कि ये कलर रेड है या ये कलर पिंक है या ये कलर येलो है, ठीक है। ये एक ऐसा आइडिया है कि जिसके ऊपर शायद हमारी डिसएग्रीमेंट भी हो कि मतलब एक बंदा एक कलर को एक कहेगा और मैं उसे दूसरा नाम दूंगा, ठीक है। ये क्या चीज है कि जिसके बेस पे आप उस कलर को वही नाम देते हैं, ठीक है। सो अगर आप प्लेटो से पूछें कि ये रेड को आप रेड क्यों कहते हैं, तो प्लेटो वुड से दैट देयर इज अ प्योर आइडियल फॉर्म ऑफ रेडनेस which exists in the theory of forms। वो कहेंगे कि इस रेडनेस का, ये जो बीइंग अ रेड है, ये इसका जो बीइंग है वो वहां पे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जो उसका एक शैडो है, राइट। सो वो इसकी डिराइवेशन वहां से करेंगे, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर इन प्लेटोनिक साइंस देन इज द आइडियल ट्रांसेंडेंट फॉर्म ऑफ रेडनेस, राइट। कि मतलब वो वहां आउटसाइड दिस दिस वर्ल्ड वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं रादर देन इट्स imperfect empirical representation, right? But suppose, like Hobbes and his contemporaries, we reduce all physical phenomena to body and motion। जैसे मैंने कहा कि materialistic sciences तो body और motion पे rely करते हैं, mass और energy पे rely करते हैं, तो फिर वो redness के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। So we would then inquire as to what kind of body and what kind of motion are involved in this phenomena of color, right? Obviously, color is visually perceived, which means it must be connected to the larger phenomenon of light. But what then is light? Clearly, it must be some kind of body that, upon striking an object, is reflected in such a way that it produces in us the sensation of redness. Redness is simply a word we use to describe a particular kind of body in motion, right? So you can see the difference here कि Hobbes would say कि जो हमारे सामने रेड कलर आ रहा है ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, जिसको हम परसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू एज रेड फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें एक रेडनेस का लाइट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि लाइट क्या चीज है, ठीक है। सो ही वुड से कि लाइट एक मटेरियल चीज है, मतलब ये एक मटेरियल चीज है जो कि स्ट्राइक करती है एक दूसरे के ऊपर, जिसके नतीजे में वो एक सेंसेशन डेवलप करती है, ठीक है। और वो सेंसेशन रिजल्टेंटली हमें अपील करती है, फिर हमें उस चीज को हम कोई नाम देते हैं। बात की समझ आ रही है? ये जो लैंग्वेज है हॉब्स का, ये बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर मैटर के इनर डायमेंशंस में जाता है, ठीक है। सो इट टॉक्स अबाउट द इनर डायमेंशंस ऑफ एनीथिंग। जरा मैं ये विंडो बंद करता हूं। आई होप कि आप समझ रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे मजीद भी डिटेल है कि पुट इन द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न साइंस, the property of redness or of any other color is simply a particular frequency of light particles, जिसको आप photons कहते हैं या waves,
ठीक है. Thus, with the language of body and motion, we have reduced the phenomena of color to its basic common denominator, and as such, no longer need to worry about getting agreement on what is red versus what is pink. Red or pink are now simply subjective sensory experience, what Hobbes calls phantasms of an objective physical phenomena. ठीक है. हॉब्स कहते हैं कि ये जो लाइट आती है, फॉर एग्जांपल, ये खैर ये बाकी जो नई इंटरप्रिटेशन है लाइट के बारे में, पार्टिकल्स का जो जिक्र है, फोटॉन्स का या वेव्स का जिक्र है, तो ये अब बहुत रीसेंट है. ठीक है. उसी टाइम पे फोटॉन्स का जिक्र नहीं था. नोबडी डिस्कवर्ड फोटॉन एट दैट टाइम. लेकिन ये आइडिया कि अगर आप देखते हैं किसी भी कलर को और उसको मेटेरियलिस्टिकली रिड्यूस करते हैं क्वांटिटेटिव लेवल पे, ठीक है, मतलब उसको क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं और रिजल्टेंटली उसके ऊपर उसको उसको ऑब्जर्व करते हैं, सो यू विल सी अ पर्टिकुलर लाइट और अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेव्स देयर. लाइक आप उस चीज के अंदर जो फॉर एग्जांपल लाइट के केस में है, you will find out matter in the bottom of this redness, कि जो रेडनेस शो कर रहा है ये उसकी मेटेरियलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसके मैटर है जिसने उसको ये रेडनेस का शेप दिया है. ठीक है. और अगर कोई भी कलर हो, पिंक हो, येलो हो, जो भी हो, ठीक है, इनको हॉब्स कहते हैं कि ये फैंटाजम्स हैं. फैंटाजम्स का मतलब उसका ये है कि ये जो चीज को मैं देखता हूं, मेरे सेंसेस उसको कनेक्ट करते हैं टू माय माइंड. ठीक है. और रिजल्टेंटली एक सेंसेशन पैदा हो जाती है उस कलर के बारे में. फिर उसको मैं कोई पर्टिकुलर नाम देता हूं. उन सेंसेशन को वो फैंटाजम्स कहते हैं और रिजल्टेंटली उस फैंटाजम्स के बेस पे वो उसको कोई कलर का नाम देते हैं. दैट इज हाउ ही परसीव्ड अबाउट द मैटर. प्रॉबेबली कलर की बजाय अगर आप कोई और एग्जांपल दे किसी भी मटेरियल चीज की, ठीक है, सो यू विल सी के फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट अ स्टोन और इफ यू लुक एट वाटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाटर या स्टोन या जितनी भी मटेरियल चीजें हैं जिसको आप देख रहे हैं, उसको अगर आप स्टोन कहते हैं, उसको अगर आप वाटर कहते हैं, ये आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उस वाटर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं. ठीक है. और आप वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उस मिलाप के बेस पे उनको वाटर का नाम देते हैं. ठीक है. आपको शायद अब समझ आ रहा है कि वो हमें ये कहता है कि आप उस मैटर से आउटसाइड ना जाएं, मैटर को एक्सप्लोर कर लें और उसके बेस पे उसको उसका नाम दें. ठीक है. सो दैट इज व्हाई हॉब्स वुड से कि इसी बेस पे जो भी डेफिनेशन हमारे पास आएगा उस क्वांटिटेटिव बेसिस पे, उसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सबके सामने होगा. अगर किसी पिंक कलर के अंदर पिंक पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो रिजल्टेंटली ऑल ऑफ अस विल कॉल इट पिंक, राइट. अगर कि रेड कलर के अंदर रेड पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंटली ऑल ऑफ अस विल एग्री कि ये रेड है. ठीक है. सो यू कैन सी द आइडिया के he is saying that you should reduce everything into quantitative levels और उस quantitative levels के बेस पे फिर आप उस चीज को उसका नाम दें. ठीक है. so that is how he perceived it. and let me check अगर I'm sorry let me check अगर आपके क्वेश्चन है इसके हवाले से या सर. यस. सर ये फीलिंग्स और इमोशंस लाइक मैटर और एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में फीलिंग्स और इमोशंस को काइंडली एक्सप्लेन करें. लाइक लाइट वाला तो ओके है, वो तो समझ आ गई. अगर अगर फीलिंग्स और इमोशंस हैं तो उसके साथ क्या करें, या अगर अगर आप मुझे टाइम दे तो ये बात वैसे आगे आ रही है, तो आई होप कि ये फिर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो जाएगी आगे. ओके क्योंकि ओके सर. हाँ हाँ, क्योंकि हब्स जो मटेरियल चीजें हैं यहाँ पे फिर उसके अंदर मजीद एक नई डिस्टिंक्शन करता है और वो डिस्टिंक्शन विल के ऊपर करता है. तो खैर फिर उसकी तरफ आते हैं. बट लेट मी चेक अगर कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड.
Awais, who translated Bible? Bible was translated by so many people. जो prominent version है King James version जिसको कहा जाता है. Probably credit goes to the king of the time, but a lot of people translated it into so many languages. Primarily it was in Aramaic language, लेकिन फिर बाद में इसको Latin language और different languages में translate किया गया. Credit goes to the king and the royal and the government of the time. जिसका भी government है वो उसको अपने language में उसको इसी तरह वो करता है. Zarlash कहती हैं illusions. I'm not sure कि illusions in what way. Okay, शाहजेब, अगर वो उसका रिक्वेस्ट आता है तो मैं जरूर कर लूंगा. Okay, it was his resolution methodology of dividing something into constituent parts and then investigate. Exactly, Kamran. Yeah, exactly. Yeah. I mean, Luther King have translated for Catholics. Oh yeah, no, Luther. No. I'm not talking. I'm not concerned with even Luther King here. I'm concerned with Martin Luther. Martin Luther is a different person, you know. Okay, Osman, new empiricism. Yeah, exactly. This is what is called new empiricism. जो मैंने पहले कहा कि जो मैकियावेली से डिराइव्ड एम्पेरिसिज्म है या जो पुराना एम्पेरिसिज्म का आइडिया था, तो वो तो जस्ट सेंसेस के ऊपर था ना, कि मतलब जो भी चीजें आप सेंसेस के बेस पे लेते हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लें, उसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहें और अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज कहें. लेकिन न्यू एम्पेरिसिज्म यह है कि आप उस वो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं उसको आप उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर लें और उसमें चेक कर लें कि इसमें कौन सी चीज कितनी है, इसमें कितने कितने पार्टिकल्स किस किस चीज के हैं, और रिजल्टेंटली फिर उसके बेस पे फिर उसको उसका नाम दें. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यू एम्पिरिसिज्म. ठीक है. Anyway, so long as we can describe that physical phenomenon, it doesn't matter what we think we see. If we agree that a certain wavelength of light shall be designated, ये बात already मैंने कही कि यहाँ पे he is saying कि हमने reality को just अपने feelings या hearing या seeing को रिड्यूस नहीं करनी, बल्कि मजीद उसके अंदर जाके उसके मटेरियलिस्टिक बेसिस को देखना है, जिसके बेस पे हम एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बेस पे आएंगे. अदरवाइज अगर हम जस्ट फीलिंग्स और हियरिंग और सीइंग के बेस पे जाते हैं तो शायद वी माइट डिसएग्री. ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप जिस चीज को देखेंगे वो आपको शायद ऐसा नजर ना आए जिस तरह मैं ये देख रहा हूं. ठीक है, और शायद हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो. तो हाब्स वो इख्तिलाफ खत्म करना चाहते हैं, वो हमें एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का आइडिया देते हैं, बट दिस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इज टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक वेज. ठीक है, मजीद इसके एलाबोरेशन करते हैं. ही सेज कि a language had to be invented that would describe the underlying physical reality of body and motion. अब ये जो मैंने पहले कहा कि फॉर एग्जांपल हमने लाइट का एग्जांपल लिया या वाटर का फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं और आप उसको डिवाइड करते हैं, उसको देखते हैं, वो कहते हैं कि इसके लिए देयर इज अ नीड फॉर सम काइंड ऑफ लैंग्वेज टू डिस्कस दैट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. और उसी के लिए फिर he is saying the mathematics is the chosen language for this kind of phenomena. इसलिए आप जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें आप you can see the mathematical side of it के फिजिकल रियलिटी ऑन द वन साइड, बट इसकी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल होती है. ठीक है, आप उसको नंबर्स में फिर डिवाइड करते हैं चीजों को और डिफरेंट लैंग्वेज साइंस से उसको डिस्क्राइब करते हैं, पाई से डिस्क्राइब करते हैं, और फॉर एग्जांपल कितने लैम्बडा और ये और वो, फॉर एग्जांपल कितनी उसकी अपनी एक लैंग्वेज है. यू माइट बी फेमिलियर विद दैट. सो body can be described in terms of height, width, depth, weight, density and so on. ठीक है, so he is saying कि जो mass है उसको उसके आप वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, उसके वेट को देखते हैं, उसकी डेंसिटी को देखते हैं, उसकी डेप्थ को देखते हैं, वेट को देखते हैं. ठीक है, और जो मोशन है, जो एनर्जी है, उसको आप डायरेक्शन को देखते हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, इन चीजों को देखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सारी इस पे इन्फ्लुएंस करती हैं. अगर आपके सामने एक कार जा रही है फॉर एग्जांपल, उस कार को आप मेजर करना चाहते हैं कि किस स्पीड पे जा रहा है. ठीक है, तो
like you need some kind of algorithm, you need some kind of calculator, right? कि जिसके बेस पे आप ये समझे कि ये कितनी वेलोसिटी के साथ कितने टाइम और स्पीड के साथ ये जा रहा है, आप उसको प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं एनर्जी को। तो ये डिस्क्रिप्शन जब आप करते हैं इसको आप जियोमेट्रिकल और मैथमेटिकल टर्म्स में करते हैं, ठीक है, बात की समझ आ रही है? वो सारी एक्सप्लेनेशन वो एक खास लैंग्वेज में होती है जिसको आप मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सो precisely because of all its materialistic assumptions, modern science's necessity is a mathematical or quantitative discipline, ठीक है। like साइंस के अंदर like मॉडर्न साइंस की दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स को मदर ऑफ साइंस कहा जाता है कि यहाँ से ही ये सारी मतलब एक्सप्लोरेशन शुरू हुई है टुवर्ड्स न्यू काइंड ऑफ साइंस, और दैट इज व्हाई दे डेवलप दिस डाइकोटमी बिटवीन द classical sciences or classical epistemologies and the new sciences or the modern sciences, ठीक है। Anyway, so more important than their descriptive capabilities, however, the conclusion of mathematics and geometry are true by definition. And this was the fact that most impressed Hobbes. Hobbes इस पे बहुत मुतासिर हुए resultantly कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, जियोमेट्रिकल लेवल पे आप किसी सर्कल को देखें या किसी ट्रायंगल को देख लें और वो डिराइव कर लें बेस्ड ऑन सम फिजिकल फिनोमेना, ही वुड से कि वो हमेशा से ट्रू होता है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज एक एब्सोल्यूट लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सलिस्टिक किस्म का प्रिंसिपल डेवलप करती हैं, और हॉब्स इससे बहुत ज्यादा मुतासर है, हॉब्स को बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है ये आइडिया। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइंस, when we deduce or predict something about material world, the truth we produce is really a truth about our mathematical system, not about the material world as such. अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, आप इसको जरा समझे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीज, जो फिनोमेना हमने देखा और उसके बेस पे हमने कोई मैथमेटिकल वे के साथ उसको डिस्क्राइब किया, तो वो कहते हैं कि ये ट्रूथ प्योरली इस मैथमेटिक्स का ट्रूथ है, ये इस मैटर का ट्रूथ नहीं है। मतलब यह है उसका कि ये मैटर जो है ये कोई ट्रूथ और फॉल्सहुड डिनोट नहीं करती, ये तो मैटर है, ये तो विदाउट एनी ट्रूथ और फॉल्सहुड है, ठीक है। ये जो हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी अंदर हम ट्रूथ और फॉल्सहुड निकालते हैं, ठीक है। मतलब उसका यह है कि ये मैथमेटिक्स खुद भी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये एक सिंबल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को 1 2 3 कहते हैं तो 1 2 3 तो खुद कोई चीज नहीं है, मतलब 1 2 3 तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द टू बॉडीज फॉर एग्जांपल, और द थ्री बॉडीज फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ही इज सेइंग कि जो हमारा लैंग्वेज है, जो मॉरल लैंग्वेज है जिसके बेस पे हम ट्रू और फॉल्स डिस्क्राइब करते हैं, ही सेज कि ये जस्ट हमारे स्पीच के एट्रीब्यूट्स हैं, ये जस्ट हमारे लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये उस चीज के अंदर नहीं होते। मैटर खुद ना ट्रू है और ना फॉल्स, मैटर खुद ना राइट है और ना रॉन्ग है। ये राइट और रॉन्ग और ट्रू और फॉल्स हम अपने लैंग्वेज के बेस पे करते हैं, और हम अपने लैंग्वेज के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हम करते हैं। हम एग्री करते हैं कि ये तीन है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्री करते हैं कि ये चार है, हम डिसएग्री करते हैं कि ये दो है, ठीक है। ये डिसएग्रीमेंट जो आती है उस पर आती है। दैट्स व्हाई ही सेज कि ये ट्रूथ बहुत ज्यादा नॉमिनल है। ये नेक्स्ट स्लाइड में फिर ये बात आ रही है, लेकिन जस्ट टू गिव यू दिस के जो मॉडर्न साइंस है वो रिलाई करता है इसी लैंग्वेज पे, और ये लैंग्वेज इसी के अंदर हम ट्रू और फॉल्सहुड का नोशन डेवलप करते हैं। सो more generally, whatever symbolic language we use to describe that world, be it be mathematics, geometry, or ordinary words, the truth of what we say is the truth of only of our symbolic language. This is so because our language is simply a consistent set of symbols that we use to explain the physical world. जो चीजें हमें नजर आती हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये symbolic terms यूज करते हैं, ठीक है। These symbols are not identical to the world we are trying to explain. For this reason, Hobbes argues that science is nothing more than knowledge about how to use our symbolic language in logically coherent ways.
that scientifically speaking, true or false are attributes of speech, not of things. That is, truth resides in our speech or our symbolic language, not in the material world of things that we describe with that speech or language. Okay, so you can see there the departure from that religious language. रिलीजन के अंदर चीजों की सैक्रेडनेस और प्रोफेन होती है। आप चीजों को देखते हैं, आप कहते हैं ये चीज गलत है या ठीक है, लेकिन आप वो गलत और ठीक उसके मैटर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल सेंट अगस्टिन से पूछे, वो कहेंगे कि ये सारी दुनिया जो है करप्ट है। तो ये करप्शन का जो टर्म वो यूज करते हैं, वो मटेरियलिस्टिकली अप्लाई करते हैं कि ये सारी दुनिया मटेरियलिस्टिकली करप्ट है। ठीक है, ही इज नॉट सेइंग दैट इन स्पीच और सिंबल्स, बट हार्ब्स इज सेइंग कि नो, जो मटेरियल वर्ल्ड है वो ना करप्ट है ना प्योर है, इसका कोई लैंग्वेज नहीं है, ये हमने उसको नाम दिया है। ठीक है, सो दिस आइडिया इज नोन एज नॉमिनलिज्म। ठीक है, और हार्ब्स इज अ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ नॉमिनलिज्म। ठीक है, सो let me check if somebody is entering. Anyway, I don't see anyone. So this idea that truth is a function of language rather than of things is called nominalism. The nominalist maintains that words are merely arbitrary symbols that we use to classify things or ideas. Thus, according to the nominalist, when we say a flower is beautiful, the word beautiful is simply an abstract term or symbol we use to classify certain attributes of a flower. ठीक है, ये जो हम फ्लावर को ब्यूटीफुल कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये टर्म ब्यूटी जो हम बयान करते हैं, ये उसकी फिजिकल रियलिटी की बात नहीं हो रही, ये हमने लैंग्वेज डेवलप किया है टू डिस्क्राइब दैट रियलिटी। जो रियलिटी आपके सामने है वो एक फ्लावर है। ठीक है, उस फ्लावर को आप डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए आपने टर्म यूज किया ब्यूटी। ठीक है, ये ब्यूटी उसमें मैटर की कोई चीज नहीं है according to Hobbes, ठीक है, or according to the nominalist idea. So beauty does not exist as a physical reality, ठीक है, nor does exist as a platonic form. ठीक है, thus to understand beauty is simply to understand what we mean when we say beauty, right? It is not as Plato would say to understand larger reality called beauty. आप प्लेटो से पूछे कि ब्यूटी क्या है, वो कहेंगे ब्यूटी एक डिफरेंट फॉर्म है, एक खुद एक एंटिटी है, वो समहाउ उसको एक गॉड या गॉडेसेस से डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब वो ब्यूटी को इटसेल्फ एक चीज कंसिडर करते हैं, एक मैटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक एंटिटी कंसिडर करते हैं। हाब्स कहते हैं कि नो, ये तो जस्ट हमारी लैंग्वेज है ब्यूटी। ठीक है, Hobbes is a thoroughgoing nominalist, and it is this extreme nominalism that is the mark of modern science. Like Hobbes, modern science combines a materialist assertion that all that exists is a physical world with a nominalist theory of language that states that we can know that world only indirectly through the way we think and speak about it. It claims along the Hobbes that a scientific theory is nothing but a symbolic representation of the physical world. तो जो कुछ हम देखते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, और उस सिंबॉलिक लैंग्वेज के बेस पे हम राइट और रॉन्ग डिफाइन करते हैं, उसके बेस पे हम गुड और बैड डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये वो आइडियाज हैं जिसको नॉमिनलिज्म कहा जाता है, बेस्ड ऑन द सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, अमार अरसलान, असल में पर्सपेक्टिव तो अलग चीज है। पर्सपेक्टिव तो एक डिफरेंट आइडिया के, मतलब आप अपने एक खास एंगल से, वर्ल्ड व्यू से देखते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो पर्सपेक्टिव है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एक खास लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम ज्यादा इस लैंग्वेज के साथ कंसर्न हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट दीज आर जस्ट सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉर्म्स एंड terms and have nothing to do with the existence of something. Exactly, socially constructed भी है, और एक सेंस में symbolically constructed है somehow. Yeah, socially constructed is a very fair way to describe Kamran. Yeah, that's right. Just mental models of yeah, exactly. Physical existence and more a dual. Yeah, it is a kind of, yeah, it is a kind of dualism there. Yeah, that's true. Anyway, so the great advance in
science has in a new ways and who had developed new symbolic languages, not from those who simply collected new facts. ये असल में उसका प्रॉब्लम था फ्रांसिस बेकन के साथ. फ्रांसिस बेकन का ख्याल ये था कि साइंस जो है ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं, ठीक है. हाब्स कहते हैं कि नो नो नो, ये एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है. So this brings us to Hobbes' psychology or theory of human nature. For her revolutionary implication of his scientific method are the most important apparent. So उमामा, जो आपने क्वेश्चन किया कि मतलब फीलिंग्स का या इससे रिलेटेड या ह्यूमन साइकोलॉजी का, so ultimately he will now comes down to that idea कि जो मोशन है जिसका हमने जिक्र किया एनर्जी का, तो वो उसको फर्दर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है. और वो जो डिवीजन वो करते हैं वो दो बेसिस पे करते हैं. Yeah. So now he will turn to that. Or before I talk about that, let me tell you again that Hobbes is now looking at the social reality from that scientific way of thinking, right? क्योंकि मैंने कहा कि वो साइंस से बहुत मुतासर है, तो इस साइंस से इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो सोशल रियलिटी को भी साइंटिफिकली डील करना चाहते हैं, ठीक है. जस्ट लाइक उसने वाटर और कलर और मैटर और जितनी भी चीजें उनको नजर ट्रीट कर रहा है साइंटिफिकली, therefore he is very much interested to deal with the social reality from scientific perspective, ठीक है. ये जो पैराग्राफ है इसी से रिलेटेड है. Consistent with that method, Hobbes does not present us with the new facts about human beings, but with a new way of looking at the facts, ठीक है. Hobbes proposes to analyze humankind from that same materialist point of view, and with that same symbolic language that Galileo employed in his study of physical nature. In short, Hobbes proposes us to study human beings as a set of purely physical processes that are reducible to body एंड मोशन, ठीक है. सो वो अब ये भी कहते हैं कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी बॉडी और मोशन के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है. वो बॉडी और मोशन का कनेक्शन, उसी के बेस पे हम ह्यूमन नेचर को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. सो देयर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन. सो ही सेज के टू फिजिकल मोशंस हैं, ठीक है. वन इज वाइटल और इनवॉलंटरी मोशंस, मतलब हमारे अंदर दो किस्म के एनर्जीज हैं. एक ऐसी एनर्जी है जो कि इनवॉलंटरी है, उसके एग्जांपल वो देते हैं वो चीजें, फॉर एग्जांपल इनहेलेशन या डाइजेशन, सर्कुलेशन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे बॉडी का फंक्शन जिस पे हो रहा है, उसको वो इनवॉलंटरी मोशंस कहते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है. दीज कंप्राइज द प्योरली फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है. So on the one side we are physiology, right, and on the other side there are voluntary motions, which means those forms of human activity that are willed, right, such as walking, speaking, writing. जो भी activities हम करते हैं willed activities, जिसके अंदर हमारा will शामिल होता है, these are known as voluntary motions, ठीक है. एक voluntary किस्म की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनके लिए, ठीक है. आप स्टडी करते हैं तो यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्टडी, ठीक है. आप पहले विल और थिंकिंग करते हैं और उसके नतीजे में आप स्टडी करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, सो मोreover, since these kinds of activities are usually done with others, Hobbes includes politics and other various kinds of social interactions in voluntary motions. तो अब यहाँ पे वो पॉलिटिक्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं विद इन दिस वॉलंटरी मोशन. अगर हम फॉर एग्जांपल एक सोशल कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, तो उस कम्युनिटी के अंदर हमारी एग्जिस्टेंस भी वॉलंटरी बेसिस पे होती है, मतलब हम उसको विल करते हैं, ये खुद ब खुद नहीं आती, इनवॉलंटरी चीज नहीं है उनके ख्याल में, ठीक है. हम इसके ऊपर सोचते हैं, उनको विल करते हैं और रिजल्टेंटली वो चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है. बट Hobbes continues. He says, since the outward forms of voluntary motion begin as psychological states, psychology must precede social and political science in the study of human behavior. Before we walk, we must first will to move our legs. Before we speak, we must know what we wish to say. And we must know how to use language to convey our intended meaning. Indeed, knowing and willing constitute the whole of our psychological processes, says Hobbes. So, Hobbes के ख्याल में सारी रियलिटी यहाँ पे साइकोलॉजिकल है, ठीक है.
On the one side, he is talking about physiology, and on the other side he is talking about psychology कि हम जितने भी एक्शंस करते हैं उनके बेस पे एक साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हमारी जो फॉर एग्जांपल फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो भी उसी साइकोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड दीज प्रोसेसेस ही आर्ग्यूज आर देमसेल्व्स सिंपली इंटरनल voluntary emotions. Knowing and willing are nothing more than physical motions within the brain caused by the stimulation of or outer sensation. If Hobbes had available to him the more sophisticated language of modern behavioral psychology, he would say that human behavior may be explained as the result of electrochemical functions within the brain that are triggered by the actions of the senses. You know, वो ये कहेगा कि जो फॉर एग्जांपल हम एक्शंस करते हैं, अपने वॉलंटरी एक्शंस, वो इस बेस पे करते हैं कि हम चीजों को देखते हैं और रिजल्टेंटली हमारे ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामीन और जो हमारे डिफरेंट चीजें हैं, सेरोटोनिन और डिफरेंट हार्मोनल फंक्शंस हैं, उसी के बेसिस पे हम अपने सारे एक्शंस करते हैं। सो ही इज रिड्यूसिंग एवरीथिंग there to that motion, that energy which is caused by the matter there, ठीक है। वो कहते हैं कि साइकोलॉजी खुद भी एक मटेरियलिस्टिक किस्म की चीज है जो कि काज होती है इस ब्रेन के अंदर के डिफरेंट सेंसेशंस की वजह से, डिफरेंट कनेक्शंस की वजह से। वहां पे डिफरेंट सर्किट्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह वो मैसेज देते हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में हम एक रिजल्ट के ऊपर आते हैं और एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दस नो, अगरचे उनके टाइम पे, हॉब्स के टाइम पे ये आइडियाज नहीं थे। जी 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 सर, अगर फेयर की सिचुएशन हो सो यू डायरेक्टली रन अवे, सो दिस इज इनवॉलंटरी एक्शन, लाइक उसमें आपकी कोई विल नहीं होती, आप कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को। सर हाँ एग्जैक्टली, फियर के केस में या एक इनवॉलंटरी किस्म का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना एक सेंस में, बट या ही वेंट टू रिफ्लेक्स एक्शंस। I think he would never question that. He would say that yes, it exists within us. ये फियर के बेस पे जो हम रिस्पॉन्स करते हैं ना, लाइक फियर को आप रिस्पॉन्स करते हैं विद सम सडन एक्शन, तो वो सडन एक्शन भी मटेरियलिस्टिकली काज होता है, मतलब हमारे अंदर हार्मोनल बेसिस पे वो चीज चार्ज होती है। आप हॉरर देखते हैं तो आप डर जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो वो इसलिए क्योंकि आपने सेंसेस से वो हॉरर डिटेक्ट की, और जैसे ही वो मैसेज गया आपके साइकोलॉजी, आपके ब्रेन के अंदर, सॉरी नॉट साइकोलॉजी बट ब्रेन, और उस ब्रेन के अंदर जब उन्होंने डिटेक्ट किया वो पर्टिकुलर किस्म के पिक्चर्स, रिजल्टेंटली उसने आपको इस पे मजबूर किया कि आप डर जाएं, आप फॉर एग्जांपल चिल्लाएं, आप कोई और इस तरह का एक्शन कर लें। ही वुड से कि लाइक purely in a materialistic way, he would say कि it happens और ये हमारे अंदर होता है। So it might not be voluntary, but he would say that it is somehow voluntary in the sense कि now you can change your behavior, for example, you can change your dimension, for example, आप उस डरने वाली चीज से निकल जाते हैं, तो ये निकलना अब आपके विल पे बेस करता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि फियरफुल चीजों को देखते भी हैं और उनके लिए कोई परवाह वो नहीं करते, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी तो एग्जिस्ट करती है ना। तो इस सेंस में ही वुड से कि इट इज स्टिल अ वॉलंटरी एक्शन। आपके पास चॉइस होता है, आप डर जाते हैं लेकिन उस डर के बेस पे उस डराने वाली चीज को छोड़ना या उसको एक्सेप्ट करना, ये फिर भी आप पे रिफ्लेक्ट करता है कि आप उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ ही वुड से इट, एंड यू नो अगर वो जिंदा होता तो शायद आप उसको मजीद टफ टाइम देती इस क्वेश्चन पे, बट आई वुड से दैट इज हाउ ही वुड रिस्पॉन्ड टू इट। So yeah, Kamran, rationality, logic, psychology, exactly. So psychological, yeah, exactly. So yeah, it's controlled by hormones, exactly. Yeah, epinephrine or ये चीजें, exactly. Yeah. Human use his free will in his life. Yeah, this is the very good question. इसके बारे में वो बात करते हैं, he doesn't believe in free will. वो कहते हैं कि हमारे पास कोई free will नहीं है।
Okay, so Acha. So he says this knowing, says Hobbes, is a material or physiological activity by which we translate our sensation into words and then into language systems that can be manipulated to produce knowledge. So it begins when the organs of sensation receive the impression of outer motion, such as the motion of air and light particles, and transmit them into brain. The brain in turn absorbs and reproduces these grosser kinds of motions. So these motions within the brain, Hobbes thought of it as vibration of brain particles. कि मतलब ब्रेन के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होती है, रिजल्टेंटली उसके बेस पे वो एक एनर्जी कास्ट करते हैं, लीड टू द एक्सपीरियंस, और इन Hobbes' words, the phantasms of sensation. The brain these then assigns names to our phantasms. तो जो हमने अपने सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन लिया और उसको ब्रेन की तरफ लेके गए, ब्रेन ने उसके ऊपर अपना काम किया और रिजल्टेंटली हमें रिस्पॉन्ड किया, ठीक है. सो इस सारे प्रोसेस को वो नाम देते हैं द फैंटेजम ऑफ सेंसेशन, कि वो सेंसेशन के बेस पे ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है. सो और ब्रेन का रिस्पॉन्स सही हुआ कि उन्होंने उस फॉर एग्जांपल उस लाइट को नाम दिया रेड, उस पर्टिकुलर थिंग को उन्होंने एक खास नाम के साथ डिनोट किया. तो ये नाम देना यहाँ पे ब्रेन का रिस्पॉन्स था टूवर्ड्स दैट सेंस बेस्ड एक्सपीरियंस, ठीक है. सो ये जो बातें हमने की इसको यहाँ पे थोड़ा सा समराइज किया गया है कि एक Hobbes is talking about the psychology of knowledge. So he says the psychology of knowledge is an attempt to explain in scientific terms how human beings can think at the conceptual level, for it is this ability that distinguishes them from the rest of the animal kingdom. वो कहते हैं कि मतलब हम एनिमल से डिफरेंट इसी बेस पे हैं कि हमारे अंदर ये प्रोसेस होता है, हम चीजों को नाम देते हैं, साइन लैंग्वेजेस से डिस्क्राइब करते हैं. एनीवे सो ये द साइकोलॉजी ऑफ नॉलेज के मतलब इसी बेस पे हम डिफरेंट हैं फ्रॉम डॉग्स और एनिमल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने डॉग का एग्जांपल दिया है कि अ डॉग ही एडमिट्स विल रिकॉग्नाइज इट्स नेम व्हेन कॉल्ड, but only a human being is capable of assigning names to other names to create language systems that can be manipulated to produce knowledge. तो एक हम नेमिंग एनिमल्स हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, हम दूसरों चीजों को नाम देते हैं. ये बात तो बहुत ज्यादा आप लोगों को अगर थोड़ा सा आप सोचें तो यू कैन थिंक अबाउट इट इन अ वेरी रिलीजियस वे. यू नो आदम के बारे में क्या मशहूर था कि वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि हमने आदम को नाम का नॉलेज दिया, हमने उसको कहा कि ये चीज है, ये चीज है. तो नोइंग थिंग्स एंड नेमिंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी फंडामेंटल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के हमारे अंदर है, हम चीजों को नाम देते हैं, ठीक है. So yeah, probably Hobbes didn't thought about it in this way. Second, it must always be borne in mind that Hobbes has a strictly material psychology and knowledge. Behind our most complex and sophisticated scientific language, Hobbes insists is a more basic material reality. All of our languages may be traced back to initial physical motion in the brain, and it is these phantasms that we experience, not the material reality of the body and motion that produces them, ठीक है. So मतलब ये है कि ये सारी एक्टिविटी materialistic activity है which is nested inside our psychology, ठीक है. और इसको describe करने के लिए we need a very scientific language or sophisticated language to describe their material ideas, ठीक है. And finally, it must be kept in mind that this material psychology of knowledge carries with it a nominalist theory of language. For reasons that we can now perhaps grasp more clearly, truth exists in words and not things, according to Hobbes, precisely because we cannot experience things directly. ठीक है, हम चीजों को देखते हैं, but हमारा mind फिर उसके ऊपर मजीद उसको इलाबोरेट करता है, मजीद उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है.
नाउ सिंस वो साइकोलॉजी की बात कर रहा है और विल की बात कर रहा है, तो उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये विल क्या चीज है। और सर आज के लिए काफी है। ये काफी है, ठीक है, चलें, दैट्स गुड, चलें, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और लेट्स सी कि क्या होता है। आप जरा टाइम हो आप लोगों के पास तो चेक कर ले, रीड आउट कर ले, और देखें कि ये बंदा क्या कह रहा है और इसकी माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है।